Good morning student, how are you? Hope so. You have learned about the force and then we have studied about our next topic. What is our next topic? See here, effect of forces. In previous video we have studied about the force and what is the force? Force is a vector quantity. Vector quantity is that type of quantity whose have a direction and both magnitude also. Means direction and their magnitude also, so they are called the vector quantity. The quantity have a two type. First one is a vector and second one is scalar. Scalar quantity have no direction. Okay, in a vector quantity they have a direction as well as magnitude also. Okay, and force is a one type of a vector quantity. Okay, now you have also identified what is the action of push and pull by the examples. Then we have see that what is effect of forces. Okay, and you also know what is the resultant force also. Yes, आपने resultant force के बारे में भी बता दिया था मैंने आपको कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं तो उन फोर्सेस का जो होता है एडिशन और सम जो क्या होता है एक डायरेक्शन में होगा, है ना, तो ये क्या कहलाता है? रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। ओके, नाउ वी हैव स्टार्ट इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस? फर्स्टली force cause movement. Okay, force cause movement. Open your book, page number 127. See the paragraph. Force cause movement. When we kick a ball laying on ground, we apply the force and make it move. In the same way, we apply the force to push a table back and pull out a book from the almirah or pick up something from the floor. In each of this example, we apply force to move the thing which was at rest. When on many other everyday situation, we apply a force to make the body at rest start moving. In general, a body at rest being to move only when a force is applied. Listen, अगर आपको किसी भी बॉडी को मूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम फर्स्टली क्या करते हैं कि ये जो है कि हाउ द फोर्स कॉज द मूवमेंट। अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो किसी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट कैसे हो रहा है, मीन्स हाउ दे चेंज देयर प्लेस और चेंज देयर position. Okay, so by the activity we have shown that what is that, to prove that by applying the force we can move the body at rest. क्या बोल रहे हैं कि हम फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट में हमने क्या लिया है, बॉल या बॉडी, किसी बॉडी को क्या कर रहे हैं, मूव कर सकते हैं। तो सी अबाउट द एक्टिविटी, व्हाट इज द एक्टिविटी, व्हाट प्रोसीजर यू हैव डू दैट। फर्स्टली यू टेक अ बॉल एंड पुट ऑन द इन अ टेबल टॉप। आपको क्या करना है, एक बॉल लेना है, उसको टेबल के ऊपर रखना है एंड व्हाट यू अप्लाई द फोर्स ऑन द बॉल, मींस यू हैव पुश द बॉल। आपको बॉल को क्या करना है, पुश करना है। सो यू हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन यू पुश द बॉल एंड इट वाज स्टार्ट मूविंग। यस और नो? यस, it was start moving. That's why we say that force cause movement. इसलिए हम कह सकते हैं कि force से क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो सकता है। ओके, नाउ सी व्हाट इज द कंक्लूजन you are seeing here. Firstly, see that if you are not applying the force, so ball is in rest position. Yes or no? And the speed is what? 0. अगर आपने बॉल को क्या किया है, टेबल टॉप पे रखा है, उस पर आप कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो बॉल जो है वो कौन सी पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे। एंड व्हेन यू and that time their speed is also 0. Yes, and when you apply the force on the ball, means you are pushing the ball. So what, when you pushing the ball was moved, means it come in a moving position and what, their speed is increases. Yes, their speed is increases. Then what is our next one, force change the speed also. In same cases we have seen that पहले हमने देखा था कि वो उसके मूवमेंट को चेंज कर रहा है, मतलब रेस्ट पोजीशन से कौन से पोजीशन में आ रहा है, मूविंग पोजीशन में आ रहा है। और हमने सेकंड पॉइंट में क्या देखा कि जब अगर कोई बॉल रेस्ट पोजीशन में था तो उसकी स्पीड क्या थी, 0 थी, क्योंकि हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में वो अपने प्लेस को किसी भी डायरेक्शन में वो चेंज नहीं कर रहा है। एंड यू नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस और नो? आपको पता है कि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन time. Yes or no? Means when an object change their position with respect to time, so that is called what? Speed. Yes. So see that in the first case the speed was 0 because the ball is in rest position, and when we applying the force, so it was moving condition, it was in moving position, and then speed is increases. Okay, speed is increases. Now see that what is that, force change the speed also. Now another example for you.
कैच बॉल इन द क्रिकेट, अगर कोई क्रिकेट बॉल आ रही है आपकी तरफ, आप उसको क्या करते हैं, कैच करते हैं, तो क्या करते हैं आप एक तरह से उस बॉल को रोकने के लिए अपनी तरफ से क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। यस, सो व्हाट, अप्लाइंग अ फोर्स टू मेक द मूविंग बॉल एट रेस्ट। अब हमने क्या किया था यहाँ पे कि बॉल जो है वो क्या आ रही है आपकी तरफ आ रही है, मींस इट वाज इन अ मूविंग पोजीशन एंड व्हेन यू अप्लाइंग द फोर्स, आपने उस पे फोर्स अप्लाई किया एंड इट वाज व्हाट, and we are applying the force to stop that ball, means the ball comes in which position, in a rest position. Okay, now see that what is our next thing. See, force can change the speed also. See page number 128. When your friend in a swing and you give a push in the direction in which it is moving, the swing goes faster. आपने देखा होगा कि अगर किसी भी आपके फ्रेंड को स्विंग में आपने बिठाया, उससे आपने क्या किया, पुश किया, तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस डायरेक्शन में वो बहुत ही स्पीडली क्या करता है, मूव करने लगता है। यस, फिर मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया था, ये वाला क्रिकेट बॉल वाला। ओके, क्या आपने किसी क्रिकेट बॉल को कैच किया है तो क्या करता है, वो एक तरह से फोर्स अप्लाई करता है कि बॉल कौन से पोजीशन में आ जाए, रेस्ट पोजीशन में आ जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन अ मूविंग बॉडी कम टू अ रेस्ट, इट्स स्पीड गोज डाउन टू 0। यस, अगर कोई मूविंग बॉडी है उसको अगर हम क्या करते हैं, रेस्ट पोजीशन में लेकर आते हैं, मतलब उसका स्पीड को हम क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं, उसकी स्पीड को हम क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज दैट, व्हेन यू कैच अ बॉल इन क्रिकेट यू अप्लाई फोर्स टू मेक द मूविंग बॉल कम टू रेस्ट, दस वी कैन से दैट फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फोर्स की हमें नीड होती है ताकि हम उस बॉडी की क्या कर सके, स्पीड को भी चेंज कर सके। ओके, नाउ सी व्हाट इज द थर्ड वन, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब जो फोर्स होती है वो क्या करती है कि मोशन के डायरेक्शन को भी क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। आपने बैडमिंटन खेला होगा, है ना, तो क्या होता है, इन अ बैडमिंटन कोर्ट अ बैडमिंटन प्लेयर हिट अ स्मैश एंड ही एंड शी यूज अ फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द शटलकॉक। आप क्या करते हैं कि बैडमिंटन खेलते हैं, सामने वाला प्लेयर आपको क्या करता है, कॉक को फोर्सफुली आपकी तरफ क्या करता है, अप्लाई करता है, और आप सेम क्या करते हैं, उस कॉक के पोजीशन को चेंज करने के लिए एक अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं। यस, सो दैट इज व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ मोशन कैन चेंज। यस, its direction of motion can change by applying a force, so it was another example for you. Okay, now what is the next one, force can change the shape and size also. Yes, we know that फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। सो वी हैव टेकन एन एग्जांपल, स्ट्रेच अ रबर बैंड। आप एक रबर बैंड लीजिए, उसे स्ट्रेच करिए, इफ यू स्ट्रेच इन अ रबर बैंड सो देयर शेप एंड साइज इज आल्सो चेंजेस। ओके, देन इफ यू फोल्ड अ पेपर, अगर आप किसी पेपर को क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं, तो उसका भी शेप जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मीन्स व्हाट इज दैट कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को चेंज करना है तो हमें किसकी नीड होगी, वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ओवर देयर, दैट्स व्हाई दे चेंज देयर शेप एंड साइज आल्सो। ओके, नाउ व्हाट डू यू थिंक, व्हाट यू हैव लर्न अबाउट दैट ऑल थिंग्स, व्हाट यू हैव लर्न दैट अ फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो फोर्स होता है उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। और फोर्स क्या क्या इफेक्ट को फॉलो करता है, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो किन किन चीजों में चेंजेस कर सकता है। सो व्हाट, फोर्स कॉज द मूवमेंट, फोर्स जो है वो क्या करता है, मूवमेंट को चेंज कर सकता है। ओके, देन फोर्स चेंज द स्पीड आल्सो, फोर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन आल्सो, then force change the shape and size also. In our previous video we have know that what is the force. Now the one thing you have learned that what force has both magnitude and direction. फोर्स का क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड हियर, लिसन, मैग्नीट्यूड मींस स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, मींस आप कितना फोर्सफुली, कितना प्रेशर, कितने अमाउंट का फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं। सो दैट इज रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, दैट इज रिप्रेजेंटेड मैग्नीट्यूड। ओके, आप कितना भी स्ट्रेंथ जो है, मींस इट वाज रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस एंड दैट इज व्हाट, मैग्नीट्यूड। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी नो दैट वी हैव, I am giving an example for force. So what? See that a box over there. When you apply the force here, that was the force of F1. Okay, and the same the force F2 is applying on the same side. So what is the resultant force here? The force is adding up, means F1 plus F2. Yes. यहाँ पे मैंने बताया था कि सपोज हमने फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया हमने 10 न्यूटन का, सेकेंड फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं 10 न्यूटन के। अब हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, वी आर अप्लाइंग दैट बॉक्स, सो व्हाट इज दैट 10
what 20. Yes. So what is that? Magnitude. ये क्या represent कर रहा है? It is show the magnitude of the forces. Okay. And what? See that force have a direction also. Direction means determine the direction of force. डायरेक्शन मीन्स क्या? हमें ये पता करना है कि हम अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन है वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा. सो सी इट वाज अ रिजल्टेंट फोर्स. ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स था. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन हियर? दैट वन मीन्स लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट. Okay, clear now? So what? Force have both magnitude and direction. Magnitude means the force have strength and direction means we have determined in which direction object can move. Okay, that is clear. Now see that type of forces. What is our next one? Type of forces. So which one type of forces here? Muscular force or contact force? Muscular force or contact force. And what is the second thing? Frictional force and non-contact force. Frictional force and non-contact force. मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट क्या होता है. कांटेक्ट मीन्स व्हेन द वन ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड टू द अदर ऑब्जेक्ट, ओके, बाय एनी मीडियम. सो दैट वाज व्हाट कांटेक्ट फोर्स. एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स मीन्स दैट वन ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड टू द अनदर, डज नॉट कनेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट डायरेक्टली. ओके, कांटेक्ट में क्या होना चाहिए? दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के क्या होना चाहिए? टच में रहना चाहिए. नॉन कांटेक्ट में जरूरी नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे के क्या हो, टच में हो. उनमें एक तरह का क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है. ओके, सो दैट वाज नॉट विजिबल. ओके, सो which one? First one is a muscular force and second one is what? Frictional force. So see on your book what is that? Type of force, page number 128. Till now we has discussed the type of forces that are applied by use of our own muscles. So this force is called the muscular forces. अगर हम क्या करते हैं, कोई भी फोर्स हमारे मसल्स के थ्रू कर रहे हैं, मीन्स वी हैव अप्लाइंग आवर मसल्स आवर बॉडी टू पुट एनी ऑब्जेक्ट और पुश एनी ऑब्जेक्ट. सो वी हैव रिक्वायर्ड आवर व्हाट? मस्कुलर फोर्सेस. So that is called the muscular force. That is called our muscular forces. So example, we cannot push a table along the floor unless our hand are in contact with it. अगर मैं क्या कर रही हूँ, किसी टेबल को पुश कर रही हूँ, तो क्या मैं खड़े खड़े उस टेबल को पुश कर सकती हूँ? नो. मुझे क्या करना पड़ेगा? I use my hand to push that table. Yes. So that is what? Our muscular forces. So it was a contact force. It is a one type of what? Contact force. And what is that? Listen, next one. Some force can act on the body from a distance and we call the non-contact force. मैंने बता दिया था कि contact force में क्या होना चाहिए? The two body is in contact. The two body is in which? In a contact. In non-contact force, the two body doesn't. It's not necessary to come in a contact position. इनके बीच कुछ distance हो सकता है. इनके बीच क्या हो सकता है? कुछ distance हो सकता है. Okay? So what? The non-contact force is that type of forces. It is not necessary when the two body is in contact. Two body is in contact position. Okay, they have apart some distance also. Okay, and one type of a force they act here. So which type of force act here? Frictional force, magnetic force and electrostatic force. That was a non-contact forces. It was a non-contact force. That type of force is non-contact force. Okay, which one? Frictional force. What is the second one? Magnetic force. And third one, electrostatic force. They all are what? Non-contact force. Okay. In our previous video, you have learned that what is the contact, what is non-contact, what is the force. Okay. And in that video, we have studied about what? Effect of forces. And we have learned that force have magnitude and direction also. Okay. Thank you.